Good evening, all and every student who is present in this session. On behalf of Chanakya Institute of IT and Management, I, Rajpal Singh Chauhan, welcome you all. And this session is going to be held especially for the students of St. John's College, Agra. Apart from that, the students who are joining from different colleges, they may also be a part of this one. I welcome you all. Along with me, there are two co-hosts, Mr. Sikhar Pratap Singh Chauhan and Mr. Yunus Beg. They will assist you during this session. So one thing more I would like to say, if you want, I can start the captions also, so that you will be able to read along with listening my voice. If you want, then I can start it. तो उसमें क्या है कि आप समझ पाएंगे, but that will be active only in English. Like you are just going to see it, you are now able to see it on your screen. Yes, sir. Whatever I am speaking, that is also being shown on your screen, right? So do you need it? No, sir. It is fine. Okay, so I'm just going to turn it off. So as the screen you are seeing on the screen, this session is first session, and it is common to all, including all the students who are in now education policy. Mr. Yunus, you are requested to please switch off your microphone. We are getting voices from your background. Isika Sharma is waiting there. तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखिए ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, जैसा स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। ये चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों और चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें मैं आपका जो स्पेशली को करिकुलर एक्टिविटीज या वोकेशनल पेपर का जो सिलेबस है उसे स्टार्ट करने से पहले चाहता हूं कि कुछ आपकी इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको जानकारी होनी चाहिए इस एनईपी के बारे में, वहां से स्टार्ट करता हूं। सो बिफोर गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट योर academic study, I would like to give some outlook of this new education policy. What is new education policy and what are its components? उन्हें हम कैसे समझेंगे और क्या है। तो हम बात करते हैं कि डिड यू नो एनईपी 2020? एनईपी 2020 कब स्टार्ट हुई थी? ये कल भी मैंने आपको बताया था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। यू कैन 29 जुलाई 2020। यस, वेरी गुड। तो 29 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम इसको एनईपी 2020 कहते हैं। ठीक है, तो अभी 3 साल हम लोग कंप्लीट भी उसके कर चुके हैं, है ना। अब एनईपी में आप में से जो नए स्टूडेंट हैं वो नहीं जानते होंगे कि एनईपी का जो फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा इसे और किस नाम से जानते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड ऑफिशियली इट इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन। Okay, so now we will proceed to the next slide. Here you can see the new education policy NEP 2020 is officially known as National Education Policy. Okay, जो अभी हम लोग बता चुके हैं, जुलाई 29 2020 को इसको अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और इसे ऑफिशियली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड जनरली वी प्रोनाउंस इट एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी. Now here you can see these are the key highlights and objectives of this national education policy, or you may say new education policy. First is early child care and education, ECCE. ये सेकंड स्लाइड सर विजिबल नहीं है सर अभी। Okay, right. You are not able to see that.
Now you will be able to see it, huh? Yes, sir. Now, Yes. Yes, sir. So wherever you feel that you need to say something, you can unmute yourself and speak up. So first is early child care and education. देखिए न्यू जो पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट है। हमारा जो एकेडमिक सिस्टम पुराना था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है और इसमें सब कुछ डिपेंड किस पे है मालूम है, जिसको हम लोग कहते हैं सीबीएस। इज देयर एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज सीबीएस? व्हाट इज सीबीएस? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? और इसको CBCS भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड, जैसा अभी आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, पहले ऐसा था आइदर यू हैव टू गो फॉर पीसीएम और पीसीबी इन योर बीएससी। अभी क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि उससे डिफरेंट है। अभी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक सिस्टम है 5+3+4। इसे कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है आप में से? देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या है या सीबीएस चॉइस बेस्ड सिस्टम में क्या है कि आप अपनी चॉइस के आधार पर अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। ये कंपलसरी नहीं है कि आप कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और कैसे करें। जैसे मैथ ले रहे हैं तो मैथ के साथ में फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, या आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो जूलॉजी के साथ बॉटनी कंपलसरी नहीं है। आपके जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो डिवीजन है वो डिपेंड किस पे करता है? आपके मेजर, माइनर, को करिकुलर एंड वोकेशनल, चार में डिवाइडेड है ना? सर। आपको पता है सभी को? सर। ये चार में डिवाइडेड है। तो अब हम इससे संबंधित कुछ चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए 5+3+3+4 ये कैसा है? 5 years ऑफ फाउंडेशन फाउंडेशनल स्टेज। 4 years जो है वो आपके किस में लगेंगे? आपके स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है उसमें। तो ये दिस इज यू कैन सी हियर इट इज for 5 years, then next 3 years are for these next just a minute, these next 3 years I will use laser pointer now। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 years preparatory stage है, and then 3 years of middle stage and 4 years of secondary stage। A reduction in curriculum content and a focus on the experimental learning। तो अभी क्या है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी सिस्टम अब चलेगा, अभी तक कॉलेजेस उन्हें पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाए हैं और बहुत जल्दी इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आपको मालूम है कि आपके जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो कौन से सेमेस्टर तक के लिए एप्लीकेबल होंगे? कितने लोग जानते हैं? आप आंसर दे सकते हैं, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर इट। तो वोकेशनल 4th कोर्सेज सेमेस्टर तक। up to 4th semester only, okay? And what about co-curricular? 6 सेमेस्टर तक। ये 6 semesters तक होंगे। And what is the basic difference between co-curricular and this vocational subjects? कोई बताएगा? Number one, आप में से कितने लोग जानते हैं कि को-करिकुलर और वोकेशनल में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? co-curricular is a qualifying subject, on the other hand vocational में हमें ग्रेड मिलते हैं हमारी सर आपकी परफॉर्मेंस आवाज बहुत स्लो आ रही है।
ठीक है, तो आपने जैसा बताया कि को करिकुलर क्वालिफाइंग है, और इसे किस नाम से और जानते हैं को करिकुलर को? दो तरीके के आपके कोर्सेज हैं, एक तो क्रेडिट बेस्ड और दूसरा कौन सा है? नॉन क्रेडिट। नॉन क्रेडिट। तो को करिकुलर कैसा है? Non-credit. नॉन नॉन क्रेडिट। क्रेडिट बेस्ड। इसमें आपको पास होना कंपलसरी है, पास होने में आपको ग्रेड भी मिलेगा, लेकिन वो ग्रेड आपका दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो सीजीपीए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए एक होता है एसजीपीए एंड सेकेंड वन सीजीपीए। आप लोग जानते हैं एसजीपीए और सीजीपीए क्या होता है? कोई जानता है आप में से? नो सर। नहीं, इसके लिए हमने एक नेक्स्ट सेशन रखा है, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैं आपको ही बता दे रहा हूँ। आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें जो ग्रेड आपको मिलता है ए प्लस बी सी डी, तो इन ग्रेड से मिलाकर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हम ग्रेड बनाते हैं उसको सीजीपीए कहते हैं, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट असेसमेंट जो आपका है उसके लिए। तो सीजीपीए, एसजीपीए और पीजीए की नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, फिलहाल जो हम टॉपिक है उस पर रहेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक देखने वाली और समझने वाली चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि क्रेडिट और नॉन क्रेडिट बेस्ड सिस्टम्स वो कोर्सेज हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल गई। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है आपका कि क्या क्या मेन पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। तो फर्स्ट क्या हो गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सेकेंड, स्कूल एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको मैथ के साथ फिजिक्स लेनी पड़े या केमिस्ट्री के साथ में और सब्जेक्ट जो लेने हैं वो कंपलसरी हो, ऐसा नहीं है। तो आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं, है ना? डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, आर्ट वाला साइंस के भी सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस वाला आर्ट के भी सब्जेक्ट्स ले सकता है। और शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और उसके साथ में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? NIOS। कितने लोगों ने सुना है? किसी ने सुना है? अगर नहीं सुना है तो आई वुड लाइक टू brief introduction of this NIOS. It is called National Institute of Open Schooling. इसमें क्या है कि अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है तो डायरेक्टली आप 10th कर सकते हैं, 9th 8th, और आपने नहीं किया डायरेक्टली 10th कर सकते हैं। और डायरेक्टली 10th के बाद में आपका गैप है तो आप 12th कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है और ये बोर्ड आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या कोई भी नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं सर, आ रही है। आ रही है वॉइस। देखिए सभी लोग सुन पा रहे हैं, जिनके में नहीं आ पा रही है उनके अपने नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। और ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा, इसलिए इसमें आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं NIOS के बारे में बता रहा था कि इसमें आप हाई स्कूल और 12th डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके के कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप 4-5 केवल लैंग्वेजेस लेके ही 10th या 12th कर सकते हैं। आपको मालूम है कि ऐसा कुछ प्रोविजन है? कितने लोग जानते हैं? जानता है कोई? चलिए, सर पहली बार सुन रहे हैं सर। आप सर्च करिए इंटरनेट पे NIOS के बारे में और उसके बारे में पढ़िए। और NIOS में बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, सैकड़ों वोकेशनल कोर्सेज हैं जो वो लोग करवाते हैं। उन्हें आप कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और अपने सब्जेक्ट्स के साथ में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने अभी आपसे बात किया था IGNOU, IGNOU। यू नो व्हाट इज दिस IGNOU? यस सर। हम बताएगा। ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस ग्रेजुएशन के लिए यूज होता है। डिस्टेंस लर्निंग। It's full form. इंदिरा गांधी ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी। Now it is
इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू में क्या है कि आप इंटरमीडिएट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन डायरेक्टली, पता है आपको, सर डायरेक्टली ग्रेजुएशन कर सकते हैं या डायरेक्टली आप पीजी भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। और वो कैसे, अगर आप 12th नहीं है तब भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आपको मालूम है। और अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तब भी आप पीजी कर सकते हैं। क्या आपको पता है ऐसे ओपन सिस्टम भी अवेलेबल हैं? नो और ये पूरी तरीके से वैलिड है, आप इग्नू की साइट पे देख सकते हैं। मैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का एक कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, वोकेशनल कोर्सेज का भी रहा हूँ। और उसका स्टडी सेंटर पहले आपके सेंट जॉन्स कॉलेज में ही हुआ करता था काफी पहले से, और आज भी है आपके यहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज में। और उसके बाद में मैनपुरी में नेशनल पीजी कॉलेज में सेंटर को हमने एस्टेब्लिश करवाया था। और इस समय मैनपुरी में भी कुंवर रामचंद्र सिंह महिला महाविद्यालय जो है उसमें अभी भी स्टडी सेंटर चल रहा है, और भी कई जगह इसके सेंटर्स हैं। तो अगर आपकी एज पॉसिबली, मैं शायद हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हूँ, काफी समय से मैंने उसे टच नहीं किया है, अगर आपकी एज 19 प्लस है ना, कितनी है, 19 प्लस, तो या 17 प्लस का है, कुछ ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली ग्रेजुएशन कर सकते हैं, 10th एंड 12th की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी एज 21 प्लस है तो डायरेक्ट आप पीजी कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि इंटरनेशनल जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनके तहत हम आ पाए। तो ये इग्नू में बहुत पहले से प्रोविजन है और एनआईओएस में बहुत पहले से है। अब जो हमारे अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इन सिस्टम्स को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है कि उन सभी में सेम हो। ठीक, तो हम आगे इसमें बढ़ते जो हैं। ग्रेजुएशन लेवल होता है सर, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है सर? दैट इज ऑफ 3 years। और और सर आपको इसके मालूम सारे है जो मैंने, हाँ जी, सर इसके जो सर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब जो वैलिड होता है सभी जॉब के लिए? बिल्कुल सभी के लिए वैलिड है, आवाज लेकिन नहीं आ रही देखिए है बिल्कुल भी। बाकी के लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, इट इज यस ऑडिबल। सर। यस 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 सर, सर। बड़े बड़े आराम से। चलिए देखिए, जो नहीं सुन पा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से टू ऑल ऑफ देम दैट दैट इज द प्रॉब्लम ऑन योर एंड। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि आपको ये रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, इसलिए आप कतई परेशान मत होइए। ठीक है, आगे बढ़ें जिससे टाइम का सही यूज हो पाए। यस तो सर। इसमें जो ओपन स्कूलिंग या इग्नू है, इसका एक बड़ा फायदा ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं तो वो इन सिस्टम्स के थ्रू अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका आगरा यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू वो नहीं चल सकते क्योंकि इसमें रेगुलर क्लासेस शो करनी पड़ती हैं, और इन्होंने शायद प्राइवेट मोड भी अभी बंद कर दिया है, तो उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन में आप समझते हैं कि, जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और सिंपली वोकेशनल एजुकेशन में कोई भी एक चीज आपके पास में है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप क्या करिए कि आप केवल टाइपिंग सीख लीजिए अच्छी तरीके से, और अगर आपने टाइपिंग भी सीख ली तो आपको जॉब मिल सकती है। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं जिसमें अच्छी स्पीड आपकी होनी चाहिए, और थोड़ा सा एमएस ऑफिस आपने सीख लिया, थोड़ा सा विंडोज का नॉलेज है और इंटरनेट ऑपरेट करना जानते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग लेवल की जॉब कहीं भी मिल जाएगी। और ये बहुत थोड़े समय में कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, 2-3 महीने में हो जाते हैं। वोकेशनल कोर्सेज में इसी तरीके के बहुत सारे कोर्सेज आपकी यूनिवर्सिटी में 132 कोर्सेज इनलिस्टेड हैं, जो जिनमें से कॉलेजेस में अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर आप जो भी कोर्स चुनना चाहें उन कोर्सेज को आप चुन सकते हैं। ऐसा ही आपके कॉलेज में भी किए गए जो आपको अभी बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित विशेष जो चेंजेस किए गए उनकी। आपको मालूम है एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है इंडिया की, कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है?
आप लोगों ने नाइलेट का नाम सुना है? NIELIT? यस सर। कोई बताएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आप ओ लेवल और ट्रिपल सी वगैरह करते हैं। इनके केवल ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्सेज नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें बहुत ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और बहुत एडवांस कोर्सेज हैं। इन पे एक स्पेशल सेशन में आपको और वीडियो दूंगा जिनमें आप अपने घर में रहते हुए इनके कोर्सेज कर सकते हैं। इतने एडवांस कोर्सेज हैं और इतने सरल और कम पैसे में अवेलेबल हैं जो शायद कहीं पॉसिबल नहीं हो सकते। इसके सेशन को मैं आगे रखूंगा। नेक्स्ट है असेसमेंट रिफॉर्म्स। अब असेसमेंट रिफॉर्म्स की जब बात आती है तो आपको मैं बता दूं कि इसमें पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। असेसमेंट रिफॉर्म्स में असेसमेंट के जो नई टेक्निक्स हैं तमाम, उन्हें डेवलप किया गया है और बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है किसको? ऑनलाइन सिस्टम को, जिसमें ये माना जा रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम सबसे ज्यादा बेहतर है तमाम सारी प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे आज जितने स्टूडेंट क्लासेस ले पा रहे हैं ऑनलाइन, इन सभी को एक साथ पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होगा फिजिकली। बैठने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी 1 to 1 आप सुन पा रहे हैं, सुनने की भी प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उस समय हो सकता है आप प्रॉपरली माइंड मेकअप ना हो, पढ़ाया जा रहा है फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया जा रहा है आपके ऑनलाइन सिस्टम पे। इसमें कोशिश ये करी जा रही है कि मैक्सिमम ऑनलाइन सिस्टम हो। नेक्स्ट है टीचिंग ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग में क्या है कि अब टीचर्स के लिए ये नहीं रहेगा कि आपने 20 साल पहले जो पढ़ा था वही रेगुलर चल रहा है, कोर्स भी रिफ्रेश जल्दी होंगे और टीचर्स को आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ब्रश अप करना पड़ेगा। लैंग्वेज पॉलिसी, सबसे ज्यादा जोर इस पे दिया जा रहा है कि कोर्सेज लोकल लैंग्वेजेस में हो। जैसे पंजाब है तो पंजाबी में हो और मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई की जाए। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। इसके बाद जो वेबसाइट में मैं लिंक करूंगा तो उसमें गूगल इंटरप्रेटर को साथ में लिंक कर दूंगा जिससे किसी भी लैंग्वेजेस को उन्हें ट्रांसलेट किया जा सकेगा। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। जितना जहां तक संभव हो आपके इसमें टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम प्रयोग किया जाए। जैसे अभी जो कुछ आप देख रहे हैं ये पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा लेके चलेंगे वर्ड में जो नोट्स हमने तैयार किए हैं वो भी आपके कंप्रेस्ड और कंसाइज्ड होंगे, कम फॉर्म में होंगे। उसके बाद जो नोट्स हम देंगे वो एक्सपेंडेड होंगे, उनमें कंप्लीट डीप नॉलेज होगा आपको जिसे आप पढ़ सकते हैं। और जितना है आप ये क्लासेस भी अगर ले लेंगे और इनके वीडियो भी देख लेंगे तो आपकी पढ़ाई के लिए वो सफिशिएंट होंगे। आगे चलते हैं, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इन कुछ टॉपिक्स पर हम लोग बाद में बात करेंगे, आज बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, रिसर्च एंड इनोवेशन, एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे थोड़ा सा आप लोगों को जान लेने की जरूरत है कि रिसर्च एंड इनोवेशंस में क्या क्या आता है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मालूम है कि आपके 5th सेमेस्टर से जहां वोकेशनल एजुकेशन हट जाएगी वहां पे क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मालूम है? एक रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड करा जाएगा सर फिफ्थ आपकी सेमेस्टर रिसर्च से। स्टार्ट हो जाएगी और रिसर्च में माइनर एंड मेजर्स होंगे, डिसर्टेशंस भी होंगे, आपको साथ में इंटर्नशिप भी होगी। तो फोकस किस पे सबसे ज्यादा है? केवल एकेडमिक एक्टिविटीज पे नहीं, आपके इनोवेटिव एंड रिसर्च वेंट ऑफ माइंड को डेवलप करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट और क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन। दिस वन, हम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में इंटरनेशनल लेवल पर खड़े होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाता है तो वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है और हमारे इंडिया का सिस्टम डिफरेंट है, और बाहर का स्टूडेंट अगर इंडिया आना चाहता है तो यहाँ डिफरेंट है। तो हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लाना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में। एक आपको मालूम है एक वर्ड यूज होता है NSQF, ये क्या है, कितने लोग जानते हैं? NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन पैक्ट। तो इसमें क्या है कि जो आपका क्वालिफिकेशन जितना भी है वो किस पे डिपेंड करेगा? क्रेडिट्स पर। किस पे करेगा? क्रेडिट्स। अब क्रेडिट क्या है कितने लोग जानते हैं?
बहुत लोग नहीं जानते। Credit means marks. क्रेडिट मींस मार्क्स नहीं है इनफैक्ट। और अब मार्क्स वाला जो सिस्टम होता था उसे थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ कि आप इन चीजों को थोड़ा सा समझें। क्रेडिट का अब मतलब है आपके नंबर ऑफ आवर्स से, कितने नंबर ऑफ आवर्स की आपकी स्टडी हो रही है। अगर आपकी स्टडी थ्योरी है, if it is of 15 hours, then it will be count as equal to 1 credit. Credit. Okay. If it is practical, then 30 hours will be equal to 1 credit. Okay. So here you can see and think that all the systems are going to be changed, and you have to change yourself according to the new education policy, and you must have to know the important points related to this new education policy or national education policy. अब आपने अपनी लाइफ में कितनी कितनी क्रेडिट्स अर्न किए हैं, ये नहीं होगा कि आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, क्या है। आपने कोई भी कोर्स किया है, जैसे आपने नाइलेट का कोई कोर्स किया है ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी की भी जो क्रेडिट है वो 80 आवर्स की है। 80 आवर्स में इतना थ्योरी इतना प्रैक्टिकल, वो आपके जो मैंने कल बताया था, एक वर्ड यूज किया था ABC, है ना, याद है कल मैंने बताया था। व्हाट इज ABC? Yes, sir. Academic Bank of Credit. एकेडमिक बैंक ऑफ Credit. क्रेडिट। तो आप जो भी क्वालिफिकेशन कहीं से भी अर्न करेंगे, आपका जो नाम है, आपकी जो आईडी है, जो यूनिक आईडी है, उसके साथ वो क्रेडिट जुड़ती जाएंगी। जैसे वोकेशनल कोर्स आप करेंगे तो वोकेशनल कोर्स 60 आवर्स थ्योरी है और 15 आवर्स प्रैक्टिकल है, तो इसकी क्रेडिट कितनी होंगी, कितनी क्रेडिट्स होंगी? कितनी थ्योरी है? 15 आवर्स थ्योरी है, 60 आवर्स प्रैक्टिकल है, तो कितना होगा? Sir, 3 3. क्रेडिट्स होंगी। 3 क्रेडिट्स, यस। तो आपके क्वालिफिकेशन पैक में 3 क्रेडिट्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से आप कोई भी अपनी पढ़ाई के साथ कोई भी और चीजें कर रहे हैं तो उन सबकी क्रेडिट काउंट होगी और आपका असेसमेंट क्रेडिट बेस्ड होगा। ये नहीं होगा कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, कि बीकॉम किया है, एमए किया है, पीएचडी किया, क्या किया क्या नहीं किया, सभी के अपनी क्रेडिट्स हैं। तो उसके आधार पर आगे क्वालिफिकेशन जो भी है वो बढ़ेगा और उसके आधार पर जो सब कुछ होना है वो होगा। जितने भी कोर्सेज हैं उनको सभी को NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, उसके तहत तैयार किया जा रहा है। हर एक कोर्स के लिए भी कंपलसरी है कि वो क्लियर करें कि उनकी कोर्स की क्रेडिट कितनी है। अब क्रेडिट आप जान गए अच्छी तरीके से सभी लोग। Yes, sir. अब क्रेडिट से बनता है रिजल्ट और रिजल्ट से बनता है आपका ग्रेड। तो आपका क्या डिक्लेयर होता है रिजल्ट में? ग्रेड। 90 प्लस अगर आपका आता है मार्क्स तो कौन सा ग्रेड मिलता है? A+। ठीक है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम, CGPA, SGPA, NSQF, ये सब चीजें मैं थोड़ा सा आगे और एक्सपेंड कर। माधव, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपकी। यस प्लीज माधव, यू कैन स्पीक अगेन। शिवानी, क्या जानना चाह रहे हैं? आप लोग माइक्रोफोन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है। सर ये वोकेशनल की क्लासेस कब से स्टार्ट हुई हैं? क्लासेस आज ही पहली क्लास समझ लीजिए आप। ठीक है, सर ओके, आगे बढ़ें। और सर Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस अभी जो आप पूछे हैं वो बेटर आपके सेशन से रिलेटेड हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। तो देखिए,
इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि हाइलाइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट, रिफॉर्म्स और टीचिंग, इन सभी को मैं आपको अभी समझा चुका हूं। ये जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं ये आपको आपके नोट्स में डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिसर्च इनोवेशन एंड स्टैंडर्ड इंटरनेशनलाइजेशन, ये पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, शॉर्टली एक्सप्लेन किया है। और आज जो है इसका सेशन यहीं तक अभी इसके लिए था। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज और कहूंगा कि मैं बीच में हो सकता है मिस कर जाऊं कि रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ है, तो आप लोग मेरे को रिमाइंड करवा सकते हैं। जहां से मैं सिलेबस नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं वहां से रिकॉर्डिंग एक्टिव रहनी चाहिए। तो अभी रिकॉर्डिंग एक्टिव है, तो मैं आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Here you can see I have just shown you 5 to 6 PPT presentations in which एक्सक्यूज मी सर। yes सर मैं ये बोल रही थी कि जो सेकंड सेम और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे स्टूडेंट हैं, इसमें कई सारे स्टूडेंट हैं, तो क्या उनके एग्जाम भी एक साथ होंगे? नहीं, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अलग होगा, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम अलग होगा। अभी एक दो क्लासेस और आपकी कॉमन होंगी, उसके बाद में आपके सब्जेक्ट भी डिफरेंट हो जाएंगे। ओके सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा, दोनों के पेपर्स अलग हैं और दोनों का सिलेबस अलग है। और क्लास भी सर अलग अलग लगेंगी? क्लास भी अलग ही होंगी दोनों की। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। राइट, तो अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी है उसके संबंध में, यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज एनईपी, और जो कुछ स्लाइड में शो किया था वो थोड़ा सा यहाँ डिटेल में है जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक सीबीएस आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, व्हाई इट इज सीबीएस हियर। कैन यू एक्सप्लेन एनीबॉडी आउट ऑफ यू व्हाट इज सीबीएस? Sir, may I Choice explain? based system है ये, मतलब अपनी के अलावा भी अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं। यस, आप चॉइस बेस्ड हैं, आपके ऊपर कोई चीज थोप ही नहीं जाएगी कि नहीं आपको ये करना ही है, और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। कुछ लोगों ने sir. बताया था, आज कोई Yes, sir. बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, अंडर ग्रेजुएट मतलब जिसने 12th तक पास किया वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, और जिन्होंने 12th के बाद जो स्टडी कर रहे होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। देखिए मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट सभी से यही करना चाहूंगा, यू आर ए स्टूडेंट, you are in the age of learning, so whatever you are going to speak, be confident that whatever you are speaking is that relevant and किसी भी तरीके से क्या आपने उसे कभी पढ़ा है या उसके बारे में जाना है, या केवल आप आइडिया लगा के बोल रहे हैं? किसने भी आंसर दिया था? सुनी, आपने अभी डिफाइन किया था। कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें कुछ भी है, कोई गलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर स्टूडेंट, और अगर आप उसमें कुछ गलती कर भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलतियां होना बात है, क्योंकि आप सीख पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में कोई अंतर नहीं है। कई कंट्रीज हैं जो उनमें अंडर ग्रेजुएट कहते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उसे, और कई कंट्रीज में ग्रेजुएट होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है मालूम है? मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के लिए क्या है बताइए भाई, अपने इंडिया में क्या है? So, intermediate pass. Yes, it is 12th.
आपको 12th होना चाहिए ग्रेजुएट होने के लिए, और कई कंट्रीज में ग्रेजुएशन के लिए सिंपली चाहिए क्या, 10th। आप 10th हैं तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसको अंडर ग्रेजुएट कहते हैं कई लोग कई कंट्रीज में। और अपने यहाँ 10th 12th या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, कई नामों से जानते हैं ना, जैसे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान का झंझट है, उसी तरीके से इसका भी चक्कर है अलग अलग। तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट सेम ही हैं, दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 12th किया तो आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो आप ग्रेजुएट हैं। व्हाइल यू आर स्टडिंग बियॉन्ड 12th यू आर इन ग्रेजुएशन, and it depends upon the countries and their nomenclature system of their education. Sometimes they give admission to undergraduate courses soon after completing their 10th. That depends upon the structure and the system of the that country follows. In our country, we get admission in graduation only after completing 12th. But I had already told you that there is one university in which you can directly go for the graduation without completing your 10th and 12th. I had told you just before some time. याद है आप सभी को? तो ये सिस्टम सब अलग अलग हैं, इन्हें आपको जानने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये जो नोट्स हैं ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आप देखिए इसमें कुछ चीजें और जान पाएंगे जो स्लाइड्स में नहीं थी, जैसे लिबरल आर्ट प्रोग्राम्स क्या है। यहाँ लिबरल जो है ये एक वर्ड, ये इसका अर्थ क्या है? इज देयर एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन इट? डेफिनेशन के हिसाब पे तो आप बता पाएंगे कि लिबरल का मतलब क्या है, और यहाँ लिखा भी है डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर, और इनफैक्ट ये है LIBRE, और लैटिन के अलावा डच और कुछ कंट्रीज में यूज होता है LIBRE। आप लोगों ने MS ऑफिस पढ़ा है किसी ने? बताइए क्यों भाई, आप लोग पार्टिसिपेट करिए। आप लोगों ने MS ऑफिस तो कई लोगों ने किया होगा ना? जी सर। यस तो यस MS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हाँ, तो ये है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का मैं लिब्रे का मतलब क्या है? ट्रिपल सी में पढ़ा था। ट्रिपल सी में आपने पढ़ा है। लिब्रे मीन्स होता है फ्री। फ्री का मतलब क्या है कंप्यूटर की भाषा में? तो उसमें चार्जेस नहीं है सर लिब्रे ऑफिस पे। यू कैन यूज इट विदाउट गेटिंग एनी लाइसेंस। तो जिन सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता उन्हें हम यूज कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स। ठीक है, तो ओपन सोर्स ये सब चीजें मैं आपको इसलिए कवर कर रहा हूँ कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ जहाँ पे आप मेरी बात को समझने लगे। उसके बाद मैं आपका सिलेबस डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा। सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा, टाइम नहीं लगेगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? वो फ्री से अटैच्ड है। फ्री किससे है? लिब्रे से है। तो लिब्रे फ्री और ओपन चले जाए आप, या ओपन फ्री और लिब्रे में आ जाए, एक ही बात। ठीक है, तो अब क्या करती है हमारी एजुकेशन जो है वो कैसी है? लिबरल एजुकेशन। तो लिबरल मीन्स, अब यहाँ पे लिबरल का मतलब ये नहीं कि उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री है। रेफरेंसेस में देखो शब्दों का मीनिंग अपने अपने सेंटेंस और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ लिबरल एजुकेशन का मतलब है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू मस्ट सेलेक्ट वन कोर्स along with another. You are free, you can select any type of courses, and here we says कि हमारे सामने सबसे ज्यादा जो शब्द हम यूज करते हैं वो क्या है? BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या B.Com कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में ये तीन सबसे ज्यादा होते हैं, बाकी के BTech हैं, BBA हैं, BCA हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कोर्सेज जिनमें एजुकेशन, जर्नलिज्म, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं, ये हमारे
आर्ट्स स्ट्रीम में भी लिबरल आर्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो इसे आप पॉसिबली समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए नेक्स्ट आगे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। तो आप एक डिसिप्लिन से, जैसे साइंस से आर्ट के कोर्सेज को ले सकते हैं। आप में से हमें कोई ये बताएगा कि सबसे बेस्ट क्या है ग्रेजुएशन में, कौन सा कोर्स सबसे बेहतर है? बीए, बीएससी और बीकॉम। मैं केवल इन तीन को ही लेता हूं, इनमें से बताइए बेस्ट कौन सा है? अपने अपने फील्ड में सब बेस्ट है। तो बेस्ट नहीं हो सकते। अगर बेस्ट की बात करेंगे तो बेस्ट और दी बेस्ट एक ही होता है। मे बी बेटर, गुड, बेटर एंड बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो एक ही। Sir, the flexibility to choose any subject is in BA. So the best course is BA. आपकी बीए है, लेकिन बहुत लोग देखो कमेंट में बीकॉम भी लिख रहे हैं, बीएससी भी लिख रहे हैं, और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। अब आप हमें मैक्सिमम लोगों की क्या राय है, ओपिनियन पोल्स भी कल से हम तैयार करके रखेंगे, जहां पे हमें आपकी ओपिनियंस लेनी है। ओपिनियन पोल आपके सामने एक्टिव होगा और आप ओपिनियन दे पाएंगे। I would like to request to Mr. Yunus, kindly prepare from tomorrow onwards opinion polls also on the given subjects, so that we can get the opinions of the students. Okay. So I am quite sure most of the students will say BA is good, BSc and BCom are best, and BSc, if we compare with BCom, then BSc is the best. Am I right? Yes, sir. आप ज्यादा तो लगभग ऐसा मानेंगे, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि BA is the best, then are you agree with me? Sir. Agree हैं? Yes, sir. यस। अंकिता आप बताइए क्यों एग्री हैं कि BA सबसे बेस्ट है? सर इसमें हमें सब्जेक्ट की कई सारी चॉइस मिलती है। हम अपने अपने जैसे साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल पढ़ सकते हैं। Ankita, I सही would इस like to वजह tell से। you, I would like to tell you, now students of BSc can also opt for all the courses of BA along with BSc. This is interdisciplinary course. Why we are using interdisciplinary? BSc का student भी psychology subject ले सकता है. It's not a matter now. Then you must have to change your mindset कि वास्तव में क्या सही है। BA अगर मैं कह रहा हूं कि बेस्ट है तो कोई और एक्सप्लेन करेगा क्या? है कोई बताएगा? सोसाइटी से हम लोग काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, सो जैसे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है सारी सर। देखिए आप अच्छा कह रहे हैं, लेकिन मैं अब टाइम ज्यादा न लेते हुए आपको बता दूं, आप जानते हैं कि इंडिया की टॉप लेवल की, हाईएस्ट लेवल की रैंकिंग जॉब्स कौन कौन सी हैं? IAS एग्जाम, IPS एग्जाम्स। तमाम जो सर्विसेज हैं आई जिनमें लगा वो इंडियन लेवल की हैं, और जिनमें जैसे PCS है तो इसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल सर्विसेज ना। तो जी सर। आपको मालूम है BA, BSc, BCom में सबसे ज्यादा किस स्ट्रीम के लोग सिलेक्ट होते हैं IAS और PCS के लिए, IPS के लिए? यस सर, BA। आर्ट्स के ही होते हैं। यस सर, आर्ट्स के होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने M.Tech किया, उसके बाद में BA से हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या तमाम ऐसे सब्जेक्ट लेके, सोशियोलॉजी वगैरह लेके उन्होंने करके तब फिर IAS क्वालिफाई किया। यस सर। कई डॉक्टर्स ने किया, बहुत लोगों ने किया। तो वर्ल्ड की, इंडिया की जो टॉप रैंकिंग सर्विसेज हैं उनमें सबसे ज्यादा ओपनिंग्स किसकी हैं? आर्ट्स की। अब मैं ये नहीं कहता कि आर्ट खराब है, यहाँ पे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आर्ट बेस्ट है, लेकिन ये भी बात सही है कि 100% में से 90% जो BA लोग करते हैं वो किस सब्जेक्ट से करते हैं कि सबसे सरल है और हमें ग्रेजुएशन करनी है केवल।
बात सही है कि नहीं? नो सर। नहीं सही है? सर ये तो एक धारणा बन गई है सर। ऐसा अगर जो सोचते हैं वो उनके लिए तो ये ठीक है, अगर जिसको लगता है कि नहीं सिर्फ ग्रेजुएशन पास करनी है तो ये तो रॉन्ग है। तो देखिए सिर्फ पास कर आप 10% लोगों में से हैं फिर, but 90%, as per my opinion, 90% people are those who want to complete their graduation only, and they want to write graduate along with their name. 10% are those people who are interested in these studies and they want to make their career in civil services or anything like that, है ना? तो आप उन 10% में से हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और आप फिर ये सोचें कि आप बीएससी करके या बीबीए करके या बीटेक करके या इसी तरीके के और जो टेक्निकल और मैनेजरल कोर्सेज हैं या और तमाम स्ट्रीम्स हैं उनसे करके आप सिविल सर्विसेज में जाएं। अगर कोई सिविल सर्विसेज का सोचेगा तो क्या करेगा, वो आर्ट को ही सिलेक्ट करेगा। और आर्ट में बहुत सारी और भी पॉसिबिलिटीज हैं। यू कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी वेरी वेल, you can develop all your humanitarian skills. In science, you can develop your scientific temper and all the things. If you want to success in business, then you can opt for the BCom. खैर, मैं इन टॉपिक से भी आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा जनरल प्रोग्राम्स में आपके सिलेबस दो में डिवाइडेड है, ये ऑलरेडी मेजर एंड माइनर में, और उसके बाद में वोकेशनल में और को करिकुलर्स में। अब एनईपी का एम क्या है? इनका एम है टेलर देयर एकेडमिक जर्नी टू देयर इंटरेस्ट एंड करियर एस्पिरेशंस। अब आपको बाउंड नहीं करना है, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना है कि आपको ये करना ही है। आपको क्या करना है, जो आपका इंटरेस्ट है लाइफ में उसी को ही आप अपना करियर बनाइए। आपको मालूम है कि मैंने जब 10th किया था 1990 में, तो उस समय 10th क्लास में 9th और 10th दोनों का सब्जेक्ट मिलाकर फाइनल एग्जाम होता था, पता है? जानते हैं आप कुछ लोग? 12th में भी ऐसा ही होता था। आप अपने फादर वगैरह से अगर पता करेंगे तो 12th में भी 11th का और 12th का दोनों साल का सिलेबस मिला के एग्जाम होता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके पेरेंट्स आपको बता पाएंगे कि उस समय 3rd डिवीजन से पहली बारी में पास हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। यस सर, आई नो। नो? यस सर। और फर्स्ट डिवीजन एक कॉलेज में 2-3 लोग आ जाते थे तो उस कॉलेज का नाम हो जाता था। और फर्स्ट डिवीजन में भी परसेंटेज अगर 60.05 आ गई तो बहुत बड़ी बात, फर्स्ट डिवीजन हो गई 0.5% से। और आज 90% से नीचे कोई नहीं आता। और 90% से नीचे ना आने के बावजूद भी हमारी पोजीशन क्या है कि हम लोग किसी भी तरीके से अपने आईक्यू का सही प्रयोग नहीं कर पाते, लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं, डेस्परेशंस बढ़ती जा रही हैं, और हमारी जो सोच है वो डिप्रेस होती जा रही है और हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर रनिंग फॉर द सेक ऑफ मनी. We are not developing our own self. Now we will proceed. हमारा गोल क्या है 21st century का? More flexible, inclusive and aligned. These are 3 words are important. What is the objective of the 2020 policy? That in 21st century we will achieve the goal of flexible, inclusive and aligned. So this is now the end of today's session, and time is already 9:21 and 10. That means 9:10 p.m. 9:10 p.m. Okay. So Yes, I sir. would like to wind up today's session. Now it is the Sir, I have last question. part of this session, that is question and answer. You can ask the questions, and then I would like to request to Mr. Yunus to be prepared for the Telegram quiz. All the students who are joining in this program, they Yes. will open their Telegram and a quiz will start, and you have to answer of that quiz. Okay. So if anybody want to ask any question, you can shoot your questions Yes, sir. right.
Yes. सो रिसर्च एंड इनोवेशन जो हमारे 5th सेमेस्टर में ये ऐड होने वाला है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। रिसर्च एंड इनोवेशन में यस सर। देखिए वो भी आपका कैसा हुआ, क्रेडिट वेस्ट वो मॉड्यूल होगा जिसकी क्रेडिट आपके क्वालिफिकेशन में जुड़ेंगे। उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बीए वगैरह के बच्चे हैं तो आपको गांव में जाके उस दिन आप बिताएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ के सिस्टम को जानें, अब वहाँ किस तरीके से किसान काम करते हैं, किस तरीके से गाय वगैरह जानवरों को रखते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं। आपको एक रिसर्च, एक माइनर रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट पे करना है, या कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, कंप्यूटर जहाँ इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं वहाँ की विजिट करेंगे। वहाँ पे आप एक तरीके से इंटर्नशिप में जाएंगे और वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है और आप प्रैक्टिकल अप्रोच को डेवलप करेंगे। इसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं इसकी डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं और उन्हें किस तरीके से दूर किया जा सकता है, गांव के लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, हम उनकी प्रॉब्लम्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से इन चीजों को आपको स्किल्स को अपने अंदर डेवलप और अडॉप्ट करना होगा। ओके तान्या, ऑलराइट सर। एनीबॉडी एल्स? Yes, sir, I have a question. शिवम। सर लास्ट टाइम 5th सेम एंड 6th सेम में एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, हमारे पास केवल 2 ही सब्जेक्ट बचेंगे। Is it true? See, I'm right now not sure about it, and definitely I will tell you tomorrow that what is the exactly right in this matter. Okay, because I am not a part of academic system, so I will talk to your sir and then I will answer you about this question. Or you can directly ask to your teachers also, but the question you have raised, that is important question. I myself would also like to update myself that what is exact right answer about it, and I will tell you tomorrow. Anybody else? Sir, Yes. sir, I have a question. Yeah. Sir, is there any vocational course, any web development courses through the vocational courses done? As far as I have seen, there are a lot of computer courses available in your vocational, but particularly for the web development, there is no course. And Sir, what types of courses are like MS Office and Internet, MS Office and कुछ एक नाम ऐसा है, और एक है बेसिक स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, एक है बेसिक कंप्यूटर, एक है डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन, एक है डाटा एंट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन, और कंप्यूटर्स में एक है अकाउंट्स विद टैली, और एक है बिजनेस एंड टैक्सेशन, और एक है टैली एंड अकाउंट्स। इस तरीके के कंप्यूटर कोर्सेज में हैं। So sir, जो वेब डेवलपमेंट का आप कह रहे हैं ना, yes sir, वेब डेवलपमेंट का मैं आपको बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा फुल स्टैक डेवलपमेंट तक का, जो yes sir, आप क्लासेस अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन ले पाएंगे, और उसमें टीचर्स अवेलेबल होंगे दिल्ली से, लखनऊ से और गोरखपुर से। एक आपने नाम सुना होगा नहीं शायद अभी तक, मैं आपको इंट्रोड्यूस sir. उससे करूंगा बहुत अच्छी तरीके से। दैट इज कॉल्ड नाइलेट स्किल हब। किसी ने इसका Yes, नाम sir. सुना है? Sir, no. नहीं सुना होगा ना? सर इसका actually- सर बट हाँ, मैंने किसी- सुना है एक almabetter.com करके कोई साइट है, उस पे भी जो है कराते हैं कोर्सेज। देखिए इस तरीके की बहुत सारी साइट्स हैं। एक वेबसाइट है यूडेमी, UDEMY, हाँ सर, उसे सुना है मैंने। अमेरिकन साइट है, और उस पे हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो नाइलेट स्किल हब या नाइलेट
खुद अपने आप में जो कोर्सेज फ्रेम अप करता है, जो देता है, उसकी कंपैरिजन में मैंने अभी तक कोई दूसरे कोर्सेज नहीं देखे हैं, और इतने सस्ते कोर्सेज की यू कैन नॉट बिलीव। यू कैन गो फॉर, आप सभी को मालूम है कि आज की डेट में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, वो है साइबर सिक्योरिटी। यस सर, हम मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, सब कुछ चीजें यूज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइलेट स्किल हब में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं है उसका, और उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको मालूम है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स प्रोवाइड करूंगा जिनमें आप पहले पढ़ाई करें और फिर जब आप उसका सर्टिफिकेट लेना चाहें तब उनकी आप फीस दें। अच्छा सर। बहुत थोड़े समय में मैं बताऊं कि हमारी अपनी जो वेबसाइट है nepc.org.in, इस पे हम वो सारे लिंक्स और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। मिस्टर रजत मिश्रा भी इस सेशन में जुड़े हुए हैं, जो इसके टेक्निकल सिस्टम्स को देखते हैं और उसे मैनेज करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रजत, अपना माइक्रोफोन ऑन करके इन्हें कुछ अगर आप मैसेज डिलीवर करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू सर, मैं काफी देर से हैंड रेज किए हुए था। could not see that, I am sorry. ओके, मतलब काफी मेरे पास में व्हाट्सएप भी आई थी, स्क्रीनशॉट्स आए थे। मैं स्टूडेंट से यही बोलना चाहूंगा कि जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जो मैसेज शो हो रहा है, योर प्रोफाइल इज ऑलरेडी लॉग्ड, तो इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो चुका है। हमने वेबसाइट को अभी अपडेट कर दिया है, वहीं पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। उस लॉगिन ऑप्शन में जाकर के आपको अपना प्रोफाइल 2 और प्रोफाइल 3, ये 2 प्रोफाइल आपको अपडेट करने हैं। रजत, प्रोफाइल 3 में अभी भी स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया है कि यूजर नेम लिखा आ रहा है। हाँ, वो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, वो अभी तक आ रहा था बट अब नहीं आएगा। मैंने उसमें जो भी चेंजेस थे वो करके अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए। अभी भी आ रहा है उसपे इनवैलिड यूजर नेम। आप प्लीज मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भेज दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिए। ओके सर। Rajat, would you like to present anything here? No sir, no. Okay. And one thing more I would like to say to all of you student कि हमारी जो लाइंस हैं, स्पेशल लाइंस स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन पे मिलेगा, ठीक है। Sir, I have a question. Yeah. Is it mandatory to complete profile 2nd and profile 3rd? That is actually not mandatory. Nothing is mandatory, but that is for your favor only. You will get a lot of type of information. So only if your this data is available with us. If that is not available, then you will not be able to get them. Like you are, I think you might have joined this Telegram channel. Yeah, I have joined, sir. You have joined Telegram group and you will be getting updates regularly. Like same, if we don't have your information with us, we will not be able to deliver informations to you. Right now 2-3 दिनों में हम आपको YouTube चैनल का भी लिंक देंगे, जहां पे आपके सारे सेशंस अवेलेबल होंगे। वो आपके प्रोफाइल में शो होंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी शो होंगे। इसलिए आपका अपलोड करना बेहतर है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। एनीबॉडी एल्स? टाइम काफी एक्सक्यूज मी सर। सर जो फॉर्म हम लॉगिन कर रहे हैं उसमें पार्ट 3 में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, पार्ट 3 अपडेट नहीं हो पा रहा है वहाँ। अभी रजत सर ने आपको बताया कि अब अपडेट हो जाएगा, आज ही उन्होंने फिनिश किया उसको। उनका मोबाइल नंबर भी चैट में आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप स्क्रीनशॉट उन्हें शेयर करिएगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा? सॉरी सर, वोकेशनल कोर्स का एग्जाम ऑनलाइन होगा? यस, दैट विल बी ऑनलाइन। स्टिल अभी तक जैसा मेरे को सर ने, आपके प्रिंसिपल सर ने बोला है, वो वोकेशनल ऑनलाइन ही होगा। अगर वो ऑफलाइन चाहेंगे तो हम ऑफलाइन भी प्रोवाइड करेंगे, बट ऑनलाइन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। सर प्रोफाइल 2nd और 3rd भरना इम्पोर्टेंट है। उससे आप भरिए, अच्छा रहेगा। 2nd तो कम से कम कंप्लीट करिए, 3rd भी आप कंप्लीट करेंगे तो अच्छा होगा। उसकी इंफॉर्मेशन कोई लीक नहीं होनी है, कहीं जानी नहीं है, ना हमने किसी को देनी है।
आपको सारा कुछ उसमें मिलेगा। सर सर Yes. वोकेशनल का सब्जेक्ट नहीं है, सिलेबस। सब्जेक्ट और सिलेबस सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ सर? मिलेगी? वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। आपको यूट्यूब लिंक में दूंगा, उस पे मिलेगा। और कोई? Sir, I have completed second part of the profile, but third part is not uploading the documents is not done by the. Abhijit, these are repeated questions. Yes, because sir. answer of this question have already been given. Now, if anybody have any different type of questions, he can speak. And finally, I would like to request to Mr. Yunus to kindly start what we can say that is called quiz. So you Yes, can sir. start, and all the students may go to Telegram. your Telegram login, and I'm also going to share the Telegram screen here so that you can see online whatever he will present. And you are already a co-host, you can present yourself. And just a minute, I am just going to share that window. Then, एक minute बस. Now you will be able to see the new window where this is open right now, and Telegram channel, Telegram group is now active. You will start from here, Yunus? Yes, sir. I shared to your Telegram, and the button shared is in your group. You can shoot. I did not use it. How we will start? सर मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया टेलीग्राम पे, आप वहां से वो शेयर टू ग्रुप में शेयर कर सकते। मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो ग्रुप है वो रेस्ट्रिक्टेड है मेरे लिए। ओके ओके जी सर। मैं भी देखता हूँ। आज टाइम भी वैसे ज़्यादा हो रहा है और यस सर। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज शेयर कर दिया है। हाँ, सभी स्टूडेंट्स उस पर क्लिक करके स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना। ये क्विज बोर्ड आ गया है, इस पर क्लिक करिए आप लोग। प्रिंटिंग राइट्स में आपको दे दूं क्या? यूनुस? जी सर। प्रेजेंटेशन राइट्स आपको दे दूं? जी सर। Yes. You can present now. One thing more, the candidates who logs in and sometimes they could not complete the session, and due to any type of problems they leaves out, their attendance will be counted, at least if they log in.
You starting? Actually, it's not working. This board. Okay, then don't mind. We will start from tomorrow onwards. Okay. So now What, sir? The quiz which we were just trying to start, due to some reasons, we are not able to start it today. We will start from tomorrow itself. Okay. Opinion polls and quiz we will start. And this session I am just going to wind up. And thank you for all. Already 1 hour, 5 minutes and 45 seconds recording have been done. It is too long. And I will try to edit it also wherever it may be possible, but due to the time constraints, may be possible that अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं इसको as it is भी अपलोड करूंगा जिससे आप लोग उसे देख सकेंगे. ठीक है? आज का सेशन यही खत्म करता हूँ. अगर Yes, अभी sir. भी कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, if that is specific and important, then you can ask. Otherwise, we are just going to wind this session. No, sir. Okay then. No, sir. हेलो सर. Yeah. सर ये क्यूज हिंदी में भी होगी या इंग्लिश में ही टोटल? देखिए मैंने प्रयास यही किया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही, और जो एग्जाम भी होगा वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा, है ना? ठीक सर. हाँ, दोनों में रखेंगे. और वैसे आप लोग कोशिश अरे करें. क्विज ओपन तो हो ही नहीं रहा है. कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट होगा वो. हाँ, आज हम यहीं पे रखते हैं. Excuse me, sir. So now finally we have reached on the point where we will wind up this session. Thank you for each and everyone for joining this session, and I hope that more students present will be tomorrow, and we will be able to deliver you a lot of things daily, especially some things may be new apart from your syllabus also, and we will keep it continue until your session is going to be complete and your syllabus also. So today I am just going to wind up session right now. So wish you all the best. Good night, and wish you all very happy days to come and happy learning to you all. Thank you.